ہسپتالوں کو ہدایت کی گئی کہ ان کے ریکارڈ تلف کر دیے جائیں، وہ سب کچھ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے. کس طرح ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد کیا ان کی حالت ہوتی ہے. انتظار حسین پنجوتا کا معاملہ آپ کے سامنے، اسی طرح بیسیوں معاملات اور ہیں جن کو آپ نے کور کیا ہے میڈیا میں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کو آپ نے کور نہیں کیا. یہ تمام جو ہمارے اغوا شدگان ہیں، ابڈکٹیز ہیں، ان کا مقدمہ ہم قوم کے پاس لے کے جائیں گے، کیونکہ عدالتوں میں تو کچھ ہوتا نہیں. وہاں ہر ادارہ آ کے کہتا ہے کہ وہ شاید چلے گئے، کہیں سیر کرنے چلے گئے، شاید کسی نے دشمنی کی بنیاد پہ ان کو غائب کر دیا، جبکہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہم قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، ہم پوری دنیا کے سامنے بھی رکھیں گے، اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اپنی اس جد و جہد سے. تو خان صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری تھا میرے لیے. خان صاحب نے آج تنظیمی سطح پہ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی امین صاحب چونکہ صوبے کے معاملات جو انتظامی معاملات ہیں ان میں جتے ہوئے ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی بھی ایک سچویشن ہے، کرم کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے فرائض انجام دیں گے، تندہی سے دیں گے، دے رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جنید اکبر صاحب کریں گے بطور صدر. ایک یہ ان کا آج فیصلہ ہے. دوسرا، ہم انتظامی سطح پہ تبدیلیاں کریں گے، انتظامی سطح پہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے عہدیداران بھی آئیں گے، کچھ ضلعوں میں کچھ علاقوں میں تبدیلیاں بھی ہوں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے اہم ذمہ داری دی ہے، اس کا تعین بھی اور نوٹیفیکیشن ہم چند دنوں میں کر دیں گے. یہ بڑے معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اور یہ مواد جو ہم نے پیش کیا ہے یہ میں چاہوں گا آپ سب کو مل جائے. ہم اس کی پی ڈی ایف بنا کر ہم اس کو ویب سائٹس پہ بھی ڈالیں گے جہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکیں گے، اس کو وہاں جا کر دیکھ بھی سکیں گے. یہ جو ایک مذاق بنا دیا گیا تھا کہ گولی نہیں چلی، یہ مذاق اب کوئی نہیں آئندہ کر سکے گا. تو ہم اس بارے میں بالکل واضح ہیں، یہ حقیقت ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دہراتے رہیں گے. شبلی صاحب. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اکثر باتیں کر دی ہیں. میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا لیڈر اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. الیکشنز میں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کی پاکستانی سیاست میں، پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، ہم نے ہماری سیاست اسی محور میں گھومتی ہے. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہماری جو سیاسی جد و جہد ہے، اس میں ہم نے ماریں بھی کھائیں، شہادتیں بھی ہوئیں ہماری، اور ہر طرح کی ظلم و بربریت کا سامنا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج، کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کے ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے، ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی، ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو، سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو چلیں لے دے کے کل ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے کوئی
तरक्की करनी है या इस मुल्क में अमन आना है, इस मुल्क में जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका कोई मुस्तकबिल को की कोई उम्मीद की किरण नज़र आनी है, तो वो सिर्फ एक जमहूरी अमल के तहत हो सकती है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए बावजूद इससे कि फिर मैं कहूँगा कि मारे हमने खाई, शहादतें हमने उठाई, फिर भी खान साहब ने कहा कि हमें मज़ाकरात भी करने चाहिए, कि अल्टीमेटली मज़ाकरात ही इस पूरी जो क्राइसिस है उसका हल है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो हुकूमत जो कि एक इखलाकी जवाज़ भी नहीं रखती, वो ले तो लाल से पहले काम लेती रही, उसके बाद मुख्तलिफ बहाने, उसके बाद फिर जब बन गई चीज़ तो हमें आप राइटिंग में दें, वो भी दे दिया, TORs भी दे दिए। लेकिन चूंकि बदनीयती थी, बदनीयती है, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी सलूशन जब होगा तो वो इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे ये सियासत कर रहे हैं अगर उसका वजूद पाकिस्तान के अवाम के सामने जब आ जाएगा, क्यों दिलचस्पी नहीं है हुकूमत को कि 9 मई और 26 नवंबर की हकीकत को पाकिस्तान के अवाम जाने। इनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि ये चीज़ जिसके पीछे या जिसके बलबूते पे ये सियासत कर रहे हैं या इक़्तिदार में है, वो इनसे इनका वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से ये बदनीयती की बुनियाद पर इन्होंने मज़ाकरात में मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया, और उससे सबसे बढ़कर कि इन्होंने जब कमीशन बनाने में लैतोलाल का से काम लिया तो इनकी हकीकत सामने आ गई कि ये चाहते ही नहीं हैं कि ये सच अवाम, पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनका, ये कभी भी नहीं करेंगे, और अभी भी इनके पास टाइम है कि अगर वो ये कमीशंस बना दें, अपनी नीयत का इजहार कर दें, पाकिस्तान के अवाम इसको वेलकम करेंगे। और अगर ये नहीं करते तो ये इसका मतलब यही हुआ कि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए, और जो सच को छुपाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी जो अखलाकी हैसियत है पाकिस्तान के अवाम में, इनकी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी ये इसी चक्कर में कि किसी भी तरीके से ये सिलसिला चलता रहे, ये स्टेटस को बरकरार रहे, ये स्टेटस को बरकरार रहेगा, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, और नेशनली इंटरनेशनली हम इसकी बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं। तो अभी भी इनके पास वक्त है कि अगर कुछ भी एक रमक भी है उसकी इस मुल्क की लिए कोई वो रखते हैं, तो वो इस स्टेटस को ख़त्म करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे कि ये मुल्क नॉर्मल हो सके। क्योंकि नॉर्मल नहीं होगा तो मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे हम खड्डे में मजीद धंसते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक चीज़ एक मैं इजाफा करना चाहूँगा, एक बात रह गई थी जी। खान साहब ने आज ये भी कहा कि हम तमाम सियासी कुव्वतों की जानिब हाथ बढ़ा रहे हैं। हमने शायद खाकान अब्बासी साहब से बात की, हम सिंध भी जाएंगे, वहाँ GDA की जमातों से भी मिलेंगे। लेकिन बहुत ही अहम बात जो आज खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि हम बलोच जो गुमशुदगान हैं उनके साथ खड़े हैं, हम महारंग बलोच से भी मिलेंगे। हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में आज़ादी दिलाने के लिए हर उस कुव्वत के साथ खड़े होंगे जो अक़दार के लिए, हमारे जो बुनियादी हुकूक है उनके लिए लड़ रही है। इसलिए महारंग बलोच हो या कोई और हो, कोई पख्तून ताकत हो, कोई बलोच ताकत हो, सिंधी ताकत हो, जहाँ कहीं हुकूक की पामाली हो रही है, तहरीक इंसाफ साथ देगी, अपनी आवाज़ उन आवाज़ों के साथ मिलाएगी। हम पाकिस्तान की वफादार तरीन जमात हैं, हम पाकिस्तान के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हुकूक की पामाली कहीं भी होगी, कहीं भी लोगों को अगवा किया जाएगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपका जो मेन है वो जाली हुकूमत का नारा लगाते हैं, लेकिन आपने मुलाकात में
8 फरवरी का कोई जिक्र ही नहीं किया, ना ही कोई इस हवाले से, नंबर 1। और सर दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने भी 39 जो आपकी नशिस्तें थी उनको तस्लीम किया था कि वो MNA है PTI के, उसके ऊपर भी आपने मखसूस नशिस्तें लेने के लिए या बाकी मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो पसे पुश डाला हुआ है। सर तीसरी चीज बताइएगा कि कमेटी आपने बनाई, टाइम मुकर्रर आपने किया जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए, जो भी TOR हैं या चीफ जस्टिस या 3, ये सारा कुछ सर आपने करना है, तो हुकूमत ने क्या करना है? जी, मैं अर्ज कर दूं, आपके 3 सवाल हैं। पहले आपने कहा कि इलेक्शन के हवाले से हम क्या कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने उसे पसे पुश डाला है। अगर आप हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हमने जो तहरीरी तौर पे दिया था उसको पढ़ें तो कहता है कि हम खड़े हुए हैं अवाम की आवाज के लिए, मैंडेट के लिए। ये 2 मुतालबात हमने लिखा है, दीज आर प्री रेक्विजिट्स फॉर अ वाइडर कॉन्वर्सेशन। वाइडर कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि तमाम मामला जिनमें इलेक्शन का लूटना शामिल होगा, बिल्कुल पहले पैरे में आप देखिए तो हमने इलेक्शन के लूटने की बात की है, हमने लिखा है दीज आर अ प्री रेक्विजिट फॉर अ वाइडर कॉन्वर्सेशन। लिहाजा ऐसा नहीं है कि हमने उसको छोड़ दिया। दूसरी बात आपने की, देखिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की। 26वीं आईनी तरमीम ये कहती है कि कोई भी रिव्यू पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के किसी आईनी नौयत के फैसले के खिलाफ दाखिल कर दी गई है इस तरमीम के आने से पहले भी, तो वो फौरन आईनी जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम किया गया है, वहां जाएगी। अब हमारे लिए ये इंतहाई मैं समझता हूँ नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हमारा रवजा कानून है, पूरी दुनिया का कानून है, उसी बेंच ने रिव्यू सुनना होता है, लेकिन उन्होंने कानून बदल दिया, आइन बदल दिया, और वो भी अगवाकारी के जरिए कि अब वो रिव्यू उन्हीं जजों के पास जाएगा जो पहले एक राय दे चुके हैं इस हवाले से, जो कह चुके हैं कि अक्सरियती फैसले को ना मानो। ये तारीख में नहीं मिलता कि एक अकलियती बेंच जो है या अकलियती मेंबरान एक बेंच के ये कहें कि अक्सरियत के फैसले को मत मानो। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, चूंकि रिव्यू वहां पड़ा हुआ है। अगर वो रिव्यू हुकूमत का कामयाब हो जाता है तो तमाम मखसूस नशिस्तों से हम महरूम हो जाएंगे। ये है इस वक्त सूरत हाल। रिव्यू पड़ा हुआ है, हमारी कंटेम्प्ट की दरखास्त भी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के 2 हुक्म आ चुके हैं 8 मेंबर बेंच के। इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हो रहा। हम इस मामले को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे, लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के वजूद को हमने चैलेंज कर दिया है। पीर वाले दिन से वो मामला आगे चलेगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम किसी तरीके से खत्म होती है, आईनी तरीके से आईनी बेंच ही उसको खत्म करता है, तो फिर हालात यकसर बदल जाते हैं। फिर जो हमारा मामला है मखसूस नशिस्तों का, उसका रिव्यू उसी बेंच के पास वापस जाएगा जिसने फैसला दिया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बिल्कुल नए बेंच के पास ये जा रहा है मामला। तो ये आपका तीसरा भी था आपका एक सवाल जी। कमेटी भी आपने खुद से देखिए, हमने ये कहा कि इस कमेटी में जो आपने कमीशन कायम करने हैं वो तो बिल्कुल एक उसूल की बात है ना। आप उस उसूल की बात पे हमसे अगर इत्तफाक कर लेते हैं तो बाकी जो जुजियात हैं उन पे तो बात हो सकती है, लेकिन अगर आप उसूली तौर पे ये कहते हैं कि नहीं हमने सच जानना ही नहीं, 9 मई के हवाले से या 26 नवंबर के हवाले से हमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, तो फिर कोई बात रह नहीं जाती। जुजियात का तो मामला ही नहीं है। देखिए 2015 में एक कमीशन कायम हुआ था 2013 के इलेक्शन के हवाले से। नासिरुल मुल्क साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसकी सरबराही की थी। ऐसा नहीं कहा गया था कि चूंकि मामलात अदालतों में हैं, इलेक्शन अपीलें, इलेक्शन पिटिशनें चल रही हैं, इसलिए इलेक्शन के हवाले से कमीशन नहीं बन सकता। वो मामलात अपनी जगह होती हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो जायजा लेना होता है, एक जो उमूमी जायजा लेना होता है कि क्या हुआ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती है। इसलिए कमीशन के बारे में मजाक उड़ाना हमें ये अंदिया देता है कि कोई खुलूस नहीं है दूसरी जानिब की जुजियात पे बात हो सके। जैसे आपने कहा कि कमीशन नहीं बन रहा, इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं बढ़ेंगे आगे, तो आप लोग कह रहे हैं कि अवाम में मसला लेके जाएंगे, दोबारा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट पावर यूज करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, एहतजाज करना एक आईनी हक है। आप आइन का आर्टिकल 15 पढ़िए। सड़कों पे चलना हर पाकिस्तानी का आईनी हक है। सड़क पे चल के सियासी आवाज बुलंद करना आईनी हक है। आर्टिकल 19 पढ़िए, आर्टिकल 17 पढ़िए। इकट्ठे होके खड़े होना एक आईनी हक है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, चलना, खड़े होना, बोलना। अगर ये आप नहीं देते तो जिंदगी नहीं है। तो हम हर वो काम करेंगे जिसकी इजाजत हमें आइन देता है। हम मुकदमे भी लड़ेंगे, हम पार्लिमान में भी बैठेंगे, हम सियासी महाज पे भी लड़ेंगे, हम दुनिया से मुतालबा करेंगे कि जो इस मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है उसका नोटिस लिया जाए। इंसानी हुकूक की पामाली कभी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, ये पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ने का बायस होता है।
तमाम चार्टर, ह्यूमन राइट्स चार्टर, अक़वाम मुत्तहिदा का, दीगर तमाम कवेनेंट्स जो हैं वो ये लाजिम करते हैं हर मुल्क की हुकूमत को कि इंसानी हुकूक की ताबेदारी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम आलम जो है उसको हम गवाह बनाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि कल इरफान सिद्दीकी साहब से जब मैंने पूछा तो उनका कहना था कि अगला जो इजलास था वो तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से बिलखुसूस उसी पर तो ही बात करनी थी, दरमियाना रास्ता निकालना था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फरार इख्तियार किया है। अगर वो बैठेंगे नहीं तो हल कैसा निकलेगा? और ये चीज भी क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों ने जो डिमांड सामने रखे हैं, जो मुतालिबात हैं, वो अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर मरवान आप लोगों के मुतालिबात को कैसे हुकूमती कमेटी तस्लीम कर सकती है? बातचीत करें। देखें, क्या जरूरत थी वज़ीर कानून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि बिल्कुल ये काबिल गौर ही नहीं है इनके मुतालबात? क्या जरूरत थी इरफान सिद्दीकी साहब को बयान देने की टीवी पे आके कि बिल्कुल नहीं हम मानेंगे? ये पहल तो उन्होंने की है, खामोश रहते ना। अगर हमारे स्पोक्स पर्सन के मदरसे पे हमला किया गया हामिद रजा साहब के, तो ये क्या जरूरत थी? उस दिन तीसरी नशस्त के बाद बाहर निकलते ही हम पे हमला किया गया, मजाक उड़ाया गया, सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। तो ये तमाम मामला दूसरी जानिब से आया है। अगर वहां से खामोशी होती तो हम भी खामोशी रखते। हमला वहां से हुआ है, मजाक वहां से उड़ाया गया है, बाकायदा हमला हुआ है मदरसे पे, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मारा पीटा गया है, और फिर कहते हैं आओ आके चौथी नशस्त में बैठ जाओ। क्यों किया ये सब कुछ? अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात की विंडो अभी भी सिर्फ 28 को जो मुलाकात होने जा रही है बानी पीटीए से मुलाकात से मशरूत है या कमीशन लाजमी बनना होगा? पहला सवाल आपसे। शिफली साहब मुलाकात करके आए हैं आज, क्या मौलाना फजल रहमान, महमूद अज़ीज़ इनको मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर रहे हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के हिस्से हैं? देखिए, खान साहब ने आज ये कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की फिलफौर उनसे मुलाकात कराई जाए। देखिए, अब उनके जहन में क्या है, उस मीटिंग में क्या तय पाता है, मैं नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने कहा कि मुझसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि दोनों जो कमीशन है इनके हवाले से ऐलान किया जाए, उसूली ऐलान तो किया जाए ना। ये दोनों मामलात में समझता हूं अहम है। अगर उसूली ऐलान हो जाता है, फिर अगरचे 7 दिन गुजर गए हैं और हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, तो हो सकता है इमरान खान साहब उसमें कोई रास्ता निकालें, कोई फैसला करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कमीशन की तश्कील के ऐलान के बगैर कोई चौथी नशस्त होगी। दोनों बातें जरूरी हैं, कमीशन की तश्कील का ऐलान भी हो और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी हो। जो दूसरा सवाल आपने किया, शिबली साहब जवाब देंगे, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी यही है जो तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं और एक बड़ा हम चाहते हैं एक कट हम करें, वो एक दूसरा मामला है। और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा, हम मारंग बलोच से भी मिलेंगे, हम हर एक से मिलेंगे। जी देखें, बुनियादी तौर पे मकसद तो ये है कि जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो इलाकाई हैं या वो मुल्की सतह पर हैं, उनके साथ मिलकर एक बुनियादी कॉमन एजेंडा, मिनिमम कॉमन एजेंडा, और वो क्या है कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस पे जिसका भी इत्तेफाक है, हम उन सब सियासी कुव्वतों को साथ लेके चलेंगे और ये इसका जो दायरा है हम वो वसी करेंगे। क्योंकि देखें, ये वाहिद हुकूमत है और वो उसकी वजह भी यही है कि ये अवाम की सपोर्ट से ये नहीं आए हुकूमत में। आम तौर पे जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो चाहती हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी रहे और मसाइल कम हों ताकि वो चीज़ें कर सकें। ये वाहिद हुकूमत है जिसको कि इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो उसको एक मुतज़ाद चीज़ समझती है कि जब ये स्टेबिलिटी आएगी तो उनका फिर रहना हुकूमत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खिलाफ है कि ये नहीं चाहते कि मुल्क में नॉर्मलसी आए, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। जिस तरह से कवानीन पास हो रहे हैं, आपने देखा कि पीका का कानून जिस तरह का ड्रैकोनियन कानून है, उसको किस तरीके से नेशनल असेंबली से किस तरह से वो सेनेट में भी पास करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपने सहाफ़ी बरादरी के पीछे खड़ी हुई है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम जो पीका के नई जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये बताइएगा कि आपने जो डिमांड की है कमीशन के क़याम की, हुकूमती लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारी बसात में नहीं है
इन लोगों ने हमारी बसात से बढ़ के डिमांड कर दी है। आपके बैकडोर चैनल्स पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, वेस्ट फुटबॉल की मुलाकात आप सब जानते हैं, चेहरे इक़्तिदार में उसकी बात लिस्ट है। क्या एस्टेब्लिशमेंट से भी आपने कमीशन के क़याम की बात की है? और तरीक़े साहब एक सवाल अक्सर करती है कि गोली क्यों चलाई, क्या आपने उस मुलाकात में एस्टेब्लिशमेंट ने सवाल किया है कि गोली क्यों चलाई? और इस हवाले से आप अभी भी आपके मुज़ाकरात बैकडोर जारी हैं या फिर उनमें डेडलॉक आ चुका है? देखिए, बैकडोर मुज़ाकरात कोई नहीं है। गौहर साहब वज़ाहत कर चुके हैं, एक मीटिंग थी, सिक्योरिटी के हवाले से थी, उस दौरान जो भी गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम के बगैर ना माशी इस्तेहकाम होता है, ना सिक्योरिटी होती है किसी भी इलाके की। उस हवाले से बात हुई, कोई हमारे बैकडोर मुज़ाकरात जारी नहीं है। ये मांगना कमीशन हमारा बिल्कुल हक है, और देना जो है वो अब जो हुकूमत है उसी की सवाबदीद है ना। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, उसमें हुकूमत को ये ताकत हासिल है कि वो कमीशन कायम करे, और कोई इस हवाले से नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। तो हम बात तो उन्हीं से करेंगे। हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये एक बेबस हुकूमत है। हमें कहा जाता था कि नहीं, आप सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते, आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो हमने कहा हम कर लेते हैं बात, अपने इख्तियार का इजहार करो, बताओ कि तुम एक बाइख्तियार हुकूमत हो। अब नजर यही आ रहा है, और आप सबको भी नजर आ रहा है कि कौन कितना बाइख्तियार है। जी शराजी साहब, हम सबको ये नजर आ रहा है कि मैं गलत हूँ। जिस तरह परवेज इलाही के घर पे क्रैकडाउन हुआ था, पंजाब पुलिस पहुंची थी, इस मरतबा साहबजादा अहमद रजा के घर पहुंची, और उस वक्त पीटीआई की स्पेस खत्म होना शुरू हो गई, और अब भी लग रहा है कि पीटीआई तन्हाई की तरफ चली जाएगी मुज़ाकराती अमल से दूर होते हुए। उस वक्त भी खान साहब ने कहा था कि आप मुज़ाकरात खत्म कर दो। अब भी 7 दिन का अल्टीमेटम देके ऐसा जैसा कि जबरदस्ती चाहते हैं कि 7 दिन फाइनल क़यामत आ जाएगी। ये क्यों किया जा रहा है? मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क तो 100 साल की जदोजहद से तरक्की करते हैं, आपको 7 दिन बर्दाश्त नहीं हुए? नहीं, देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है। हमें अब ये एहसास पहले भी था और अब बिल्कुल यकीन में बदल चुका है कि इन मुज़ाकरात के अमल को दिखाया जा रहा है दिखावे के तौर पे कि देखें इस मुल्क में सब ठीक हो गया, ठीक होने को है, ताकि इस मुल्क के लोगों को भी फरेब दिया जाए जो कि फरेब नहीं दे सकेंगे, और पूरी दुनिया को ये फरेब दिया जाए कि देखिए हम तो मेज़ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, सब चीज़ें जो हैं वो अच्छाई की जानिब चल रही हैं, जबकि हकीकत वो है जिस तरफ आपने इशारा किया। साहबजादा हामिद रज़ा के मदरसे पे, घर पे जिस तरह हमले हो रहे हैं, जिस तरह लोग आज भी अगवा हो रहे हैं, ये है हकीकत। हकीकत ये है, ये सिर्फ इंतजार पंजोता का मुस्कुराता चेहरा और शिकस्ता चेहरा नहीं है, ये आप और मैं, हम सब हैं। ये है आज पाकिस्तान की हकीकत। कोई इसमें बईद नहीं होगा अगर आज शाम मेरे साथ ये हो जाए घर पहुंचने से पहले, या आप में से किसी के साथ ये हो जाए। तो हमने इस हकीकत को सामने रखना है, इसको भूलना नहीं है। हमने कमेटी नहीं खेलना। खान साहब बिल्कुल इस बारे में वाज़ेह हैं कि हमने एक कदम उठाया, लेकिन अब अगला कदम जो है वो पाकिस्तान भर में उठेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर सियासी कुव्वत को हम साथ लेके चलेंगे, हर एक को हम आवाज देंगे। बिल्कुल हम तन्हाई की जानिब नहीं जा रहे। तन्हाई को खत्म करना ये नहीं है कि हम उन लोगों के साथ मेज पे बैठ जाएं जिनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तन्हाई का खत्म करना ये है कि हम हर उस शख्स को साथ लेके चलें, हर उस जमात को साथ लेकर चलें जो आइन के लिए, इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करना चाहती है। सलमान अकरम रजा साहब ये बताइएगा, कल ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि हम मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग करने जा रहे हैं, उसको पकड़ने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने ये दरख्वास्त की है कि मलिक रियाज साहब जो 30 सालों में उनके पास सबूत हैं वो अवाम के सामने लाए। तो आने वाले दिनों में क्या तरीके इंसाफ मलिक रियाज को भी एक हीरो के तौर पे पेश करेगी, और उनसे कोई राब्ता किया जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पे? नहीं, कोई राब्ता नहीं। देखिए, मलिक रियाज ने खुद कहा कि मेरे पास वो राज हैं, मेरे पास वो मालूमात हैं कि मैं वो सामने ले आऊं तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो लाए ना। हाँ, हम किसी बात से नहीं डरते। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा दामन साफ है, जो राज वो कहते हैं उनके पास है, जो वो हकीकत सामने ला सकते हैं कौम के, जरूर लेकर आए। बताएं क्या हुआ, बताएं कि 460 अरब रुपए का मामला क्या है, बताएं वो 50 मिलियन पाउंड का महल कौन सा था जो लंदन में उनको खरीदना पड़ा। तमाम बात सामने लाए ना। बताएं कौन सी जमीनें हैं जिन पे उन पे दबाव डाला गया या उनको दी गई, अता की गई कि इन पे सोसाइटी बनाओ, उसमें और कौन हिस्सेदार था। लाएं ये तमाम वाकयात और तमाम हकायक कौम के सामने। हमें कोई खौफ नहीं है। सलमान साहब, मेरा सवाल लीजिए सर, आपने बलोच जो मुशतल लोग हैं उनके हवाले से बात की। जब आपकी अपनी हुकूमत थी तो उस वक्त आपने कोई बात नहीं की। जब हर कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो फिर वो भूल जाती है, बलोचों को भी भूल जाती है, पठानों को भी भूल जाती है, लेकिन जो ही वो अपोजिशन में आती है फिर वो खड़ी हो जाती है। आपके अपनी हुकूमत में ना आप मानव के साथ खड़े हुए, ना आप बलोचों के साथ खड़े हुए। एक इस हवाले से बताएगा।
सर दूसरा मेरा जो मेन सवाल है वो ये है कि मुज़ाकरात इमरान खान ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और अली अमीन गंडापुर जो एक किस्म का ताकतवर हल्कों के साथ जो आपकी मुज़ाकरात करा रहे थे उनको भी केपी के की सदारत से हटा दिया, तो अब ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम अवाम की सियासत कर रहे हैं, हम कोई बंद कमरों की सियासत नहीं कर रहे। इमरान खान बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह हैं और जो बलोच अवाम का अलमिया है वो पाकिस्तान का अलमिया है। देखिए, माजी कुछ भी हो, आपका माजी के हवाले से कुछ भी अंदाज़ा हो, हम आज बिल्कुल वजाहत के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी होनी है और कोई भी उसका अगर मातूब होता है रियासती जबर का तो हम उसके साथ खड़े हैं। वो बलोच हो, वो पख्तून हो, वो सिंधी हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा हो, जहाँ कहीं जुल्म होगा तहरीक इंसाफ आवाज़ बुलंद करेगी। दोनों कमेटियां खड़ी हैं, तो कौन पहल करेगा? शिबली साहब जी, कैन यू दोनों कमेटियां अपने अपने स्टांस पे खड़ी हैं। देखें, बात यह है कि इसमें हुकूमत की सवाबदीद है। कमीशन हमने अपनी डिमांड की है और एक जायज़ डिमांड की है और अपने पूरे हमारी जो भी वो हैं शिकायत हैं, हमारे जो भी वो हैं तकालीफ हैं जो कि हमने गुजारी हैं, जो हमारे साथ हुआ है, हमने उसको मुल्क की इंटरेस्ट में उसको बड़ा मुख्तसर करके आप मुझे बताएं कि जो दो डिमांड्स दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक ये है कि पूरे माहौल को में थोड़ी सी एक नॉर्मल सी लाने के लिए जो कैदी हैं सियासी कैदी उनको रिहा किया जाए, और दूसरा ये है कि जो भी देखें, जो भी हुकूमती सियासतदान हो या उनकी अलाइड पार्टीज हों, वो 9 मई के पीछे छुपकर सियासत कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि भाई अगर इस चीज़ को अगर आपने हल करना है तो ये तो नहीं हो सकता कि आप ही इल्ज़ाम लगाएं और आप ही कहें कि जी ये इस तरह हुआ है। तो उसमें अगर एक आपने हकीकत सामने अवाम के लानी है तो उसके लिए आपको ये 2 कमीशंस बनाने पड़ेंगे और ये काम है हुकूमत का। हमने तो अपनी डिमांड कर दी है, अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि अवाम के सामने सच आए। बुनियादी चीज़ ये है और उनका ये इक़्तिदार चलता रहे और मुल्क भले नीचे चलता जाए, अवाम बेशक ख्वार होते रहे। शिबली साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने चंद दिन पहले आपके हाथ वज़ीर आला केपी को कोई शायद कोई पैगाम भी जो आया है मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने से मुतल्लिक, और सर दूसरी बताइएगा कि वज़ीर आला केपी जो है वो कब तक वज़ीर आला केपी रहेंगे? अगर जो आप बात कर रहे हैं पार्टी का ओहदा वज़ीर आज़म इमरान खान थे और पार्टी का ओहदा उन्होंने चेयरमैन का अपने पास रखा हुआ था उस वक्त में। देखें, वो तो जो हमारा आइन, जो हमारी पार्टी का आइन जिस चीज़ की इजाज़त देता है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सूबे को आपने देखा है कि जिस तरह के कुर्रम हो गया और दहशतगर्दी जिस तरह उसने सर उठाया हुआ है, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन वो मसरूफ़ रहते हैं अपने इन कामों में, जिसकी वजह से हमारी पार्टी की जो तंजीम है उसको भी एक मुतहर्रिक करने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा मुतहर्रिक रही है और अभी भी उसमें एक ऐसी चेंजेस ला रहे हैं, लाहौर में ला रहे हैं, पंजाब में ला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ये किया है कि उसमें अली अमीन साहब को ज़रा ज़्यादा गवर्नेंस पे के लिए टाइम जो है जो उनको चाहिए, जो कि वो मसरूफ़ हैं, तो उसकी वजह से ये, बल्कि उन्हीं की अपनी दरख्वास्त पे ये अली अमीन साहब ने खुद दरख्वास्त की थी कि जी ये ओहदा मुझसे ले लिया जाए, क्योंकि कोई जो इसको फुल टाइम दे सके। और आपको पता है कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारी जो सियासी जदोजहद है उसके लिए एक मुसलसल 24 आवर्स एक फुल टाइम जॉब के तौर पे इसको अंजाम देना है, तो उसके लिए ये अलहदा किया गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।